Very good evening. संध्याकालीन इतिहास ର ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ବିଗତ କ୍ଲାସରେ ପଢିଥିଲେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟ କିଭଳି ଭାବରେ ଏକ ସୁଦୃଢ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା the sultans of Delhi had established a good and sound administration and they consolidated their position. আজি ଆମେ ଆଉ ଏକ ବିଷୟକୁ ପଢିବା, ତାହା ହେଉଛି ଡେକାନ କିଙ୍ଗଡମ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କିଙ୍ଗଡମ ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ କିଙ୍ଗଡମ ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶର ଚରମ ସୀମାରେ ଉପନୀତ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଉକ୍ତ କିଙ୍ଗଡମ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ପତନ ହୋଇଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କିଙ୍ଗଡମ୍ସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି। ଇତିହାସରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଭୂଗୋଳ ହେଉଛି ଇତିହାସର ମୁଖବନ୍ଧ ବା ଇତିହାସର ପାଟି। ଆମେ ଯଦି ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ବାଦ ଦେବା, ତାହେଲେ ସଠିକ ଇତିହାସର ନିରୂପଣ କରିବା ଐତିହାସିକ ଗବେଷକ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁ ଯେ ଭୂଗୋଳ ବା ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ଇତିହାସ ରଚନା କରିବାରେ ସାଧାରଣତଃ ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଇତିହାସ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଇତିହାସ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ, ଗଠନ କରିବାରେ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭେଇଥାଏ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ କଥାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନର୍ମଦା ନଦୀର the whole track lying south of the river Narmada is known as South India. ଆମେ ପୁରା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ନର୍ମଦା ନଦୀର ଅବବାହିକା ରେ ଯେତେ ଆମେ ଅଂଶକୁ ଦେଖୁ, ତାହାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଭାବରେ ନାମିତ କରିଥାଉ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡେକାନ ବା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଡେକାନ ର ଉତ୍ତର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ନର୍ମଦା ଏବଂ ମହାନଦୀ ରିଭରକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ପୁଣି ଆମେ ଯଦି ତାହାର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତକୁ ଦେଖିବା, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଆମେ ନୀଳଗିରି ହିଲ୍ସ ଦେଖିଥାଉ। ଏପରି ନୀଳଗିରି ହିଲ୍ସ ଏବଂ ପେନ୍ନାର ରିଭର୍ସକୁ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଠିକ ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମରେ ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ଏବଂ ପୂର୍ବରେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଏହା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି। ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ସାଧାରଣତଃ 4 ଗୋଟି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗଠନ ଥିବାର ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଏହି 4 ଗୋଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯାଦବଜ, ଦ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟଜ, ଯାଦବଜ, କାକତୀୟଜ, ପାଣ୍ଡ୍ୟଜ ଏବଂ ହୟଶାଳଜ। Dear friends, ଆମେ ଦେଖିବା ଦ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର, ଯାହା ଯାଦବଜ ବା ନାମରେ ପରିଚିତ। ଯଦି ଆମେ ଏ ଯାଦବ ରାଜବଂଶ ବା ଯାଦବ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଇତିହାସକୁ ଦେଖୁ, ଆମେ 9ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିଲା, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯାଦବ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ 300 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଏହି ଯାଦବଜ ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟଜ ଏବଂ ଚାଲୁକ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଫ୍ୟୁଡାଟୋରୀ କିଙ୍ଗ ଭାବରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। The rulers of the Yadavas were, ଏହି ଯାଦବ ରାଜବଂଶରେ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶାସକ ଶାସନ କରୁଥିବାର ଐତିହାସିକ ଉତ୍ସରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଏହି ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିଲାମା 5 ବା ପଞ୍ଚମ ଭିଲାମା ହେଉଛନ୍ତି ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜା ସୋମେଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବା ଚତୁର୍ଥ ସୋମେଶ୍ୱର, ଯେ କି ଚାଲୁକ୍ୟ
ରାଜା ତାଙ୍କର ଭିଲାମା ପଞ୍ଚମ ଫ୍ୟୁଡାଟରୀ କିଙ୍ଗ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯାଦବ ରାଜବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭିଲାମା फाइव और ଭିଲାମା ପଞ୍ଚମ ଯାଦବ ରାଜବଂଶ ବା ଯାଦବ ରୁଲକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବାର ଆମେ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ। କେହି କେହି ଐତିହାସିକ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिम्हांस राजवंश ବା ଶାସନ ସମୟରେ ଯାଦବର ବାଉଣ୍ଡରୀ ଯାଦବ କିଙ୍ଗଡମର ପରିସୀମା ଦକ୍ଷିଣ ଗୁଜରାଟ, ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ବେରାର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କିଛି ଅଂଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏଭଳି ପରିସୀମା ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ଏହିପରି କୃଷ୍ଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏ ଯାଦବ କିଙ୍ଗଡମର ଅନେକ ବା ଅନ୍ୟ ରାଜା ଥିଲେ। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ହୁଏ ଡିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେ ଯାଦବ ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଏକ ସୁଦୃଢ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି କିଙ୍ଗଡମ, ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ଯାଦବଜ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଏକ କିଙ୍ଗଡମ, ତାହା ହେଉଛି କାକତୀୟ କିଙ୍ଗଡମ। ସୋ ଡିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କାକତୀୟସ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯାଦବଜ ମାନଙ୍କ ପରି ଚାଲୁକ୍ୟ ଅଫ କଲ୍ୟାଣୀର ଚାଲୁକ୍ୟ ମାନଙ୍କର କାକତୀୟ ରାଜା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟୁଡାଟୋରୀ ଥିଲେ। କରଦ ରାଜା ଆମେ କହିପାରିବା ଫ୍ୟୁଡାଟୋରୀ ଥିଲେ ଏବଂ କାକତୀୟ ରୁଦ୍ରଦେବ और प्रताप रुद्र फास्ट होती ए काकतीय राष्ट्र प्रतिष्ठाता। द अदर रूलर्स ऑफ द काकतीयस, ए काकतीय बा किंगडम रो अन्य राजा माने हेले गणपति एवं रुद्राम्बे प्रताप रुद्र तृतीय। सबुठ बड़ कथा है जे काकतीय राजा माने निजर सांस्कृतिक कृतित्व, प्रशासनिक कृतित्व, अर्थनैतिक विकास एवं विभिन्न राज्य जय द्वारा से माने एक बृहत साम्राज्य प्रतिष्ठा करि पारिथिले एवं काकतीय मानकर साम्राज्य मुख्यतः आंध्र प्रदेश, जहा गोदावरी नदी पर्यंत विस्तृत लाभ करिथिला, कांची, कुर्नूल, चुडाप्पा डिस्ट्रिक्ट एई सबु अंचल को नहीं साधारणतः काकतीय राष्ट्र परिपृष्ट होइथिला। काकतीय मानक परि आमे आउ एक राष्ट्र देखिबा, ताहा हेउची होयसला किंगडम। ए दक्षिण भारत रे होयसला किंगडम मध्य निजर स्वतंत्र स्मारक बहन करे एवं आमे देखु जे साधारणतः होयसला किंगडम केउ अंचल को नै गठित होइथिबार आमे जानिबा को पाऊ। द होयसला साधारणतः संप्रति समय कर्नाटक एवं मुख्यतः तमिलनाडु अंचल रे होयसला माने शासन करुथिले। निजर राजनैतिक, सांस्कृतिक, अर्थनैतिक विकास पाई होयसला माने दक्षिण भारत रे प्रतिष्ठा लाभ करिथिले एवं होयसला मानकर प्रथम स्वाधीन राजा तांकर नाम हैला बालाला द्वितीय, जे कि 1173 ख्रीष्टाब्द रु 1220 ख्रीष्टाब्द पर्यंत शासन करुथिले एवं बालाला द्वितीय परे नरसिंह द्वितीय, नरसिंह तृतीय, बालाला तृतीय एपरि अनेक राजा निज निजर कृतित्व स्थापन करिसेंती। फलस्वरूप होयसाल राजवंशर होयसाल राजवंश राज्य को एमाने गौरवान्वित करिसेंती। सबुठ बड़ कथा हैला जे ए होयसाल माने पांड्यज एवं जादवज को विरुद्ध रे एमाने स्वरोत्तोलन करिसेंती, सेमानक सहित प्रतिद्वंदिता करिसेंती एवं प्रतिद्वंदिता स्वरूप होयसाल माने निजको जने दिग्विजय शासक भावरे परिणत करिबा संगे संगे
पांड्य एवं यादव मान को विभिन्न युद्ध से माने परास्त करिसेंती। हयशाल मानक परी आमे आउ एक किंगडम देखिबा ताहा होची पांड्यज। एवं जेतेबेले आमे पांड्य किंगडम कथा देखिबा डियर फ्रेंड्स, ए पांड्य किंगडम आधुनिक तमिलनाडु एवं संपूर्ण केरल राज्य आज जहाँ को देखु दक्षिण भारत अवस्थित ए तमिलनाडु एवं केरल रे आमे साधारणतः पांड्य माने शासन करुथिबार देखिबा को पाऊ। आमे जानिछंती जे जेतेबेले अलाउद्दीन खलजी दिल्ली सुल्तानेट भाव रे सिंहासन आरंभ कले तांक समय रे से दक्षिण भारत को संपूर्ण रूपे जयलाभ करथिले एवं तांकर सेनाध्यक्ष थिले मालिक काफूर। जो मालिक काफूर को अलाउद्दीन खलजी तांकर उत्तर भारत जेतेबेले से जय करुथिले से गुजरात रो कांबे ठारू तांको परचेज करथिले नसरत शाह तांको 1000 दिनार दे परचेज करथिले बा तांको किनिथिले क्रय करथिले। एठी हम देखिले डियर फ्रेंड्स द पांड्य माने साधारण पांड्य किंगडम वाज रूल्ड बाय टू ब्रदर्स। जने होछन्ते वीर पांड्य आउ जने होछन्ते सुंदर पांड्य। एवं ए वीर पांड्य सुंदर पांड्य के द्वारा साधारणतः पांड्य किंगडम रे अनेक अंतर्द्वंद रहुथिला। एई दृष्टिकोणरू आमे देखिबा जे सुंदर पांड्य हेउछन्ती प्रथम स्वाधीन शासक। द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर वाज सुंदर पांड्य ऑफ द पांड्य किंगडम। यह व्यतिरके अन्य रूलर्स माने हेले अन्य शासक माने हेले सुंदर पांड्य सेकेंड, कुलशेखर पांड्य, देन सुंदर पांड्य थर्ड एवं वीर पांड्य। एपरी अनेक शासक पांड्य राजवंश को सुदृढ़करण करने संगे संगे पांड्यर विकास रे एमाने ब्रती थिले। फलस्वरूप दक्षिण भारत रे पांड्य जदिबा एक क्षुद्र राष्ट्र थिला तथापि कि ना व्यवसाय वाणिज्य रे पांड्य किंगडम एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभे थाए वहन करि थाए जहा कि आमे ऐतिहासिक उपादान रो जानिबा को पाइ था। एहा पर आमे देखिबा जे दक्षिण भारत रे जो चारि गोटी राज्य आमे देखिले जेमिति कि आमे कहि पारुचे द जादवज, द काकतीयज, पांड्यज एवं होयसालज। एही परी आमे चारि गोटी दक्षिण भारत राज्य देखिले एवं सेमाने एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था प्रतिष्ठा करथिले। काहे कि आमे जानि छथि जदि इतिहास रे आमे प्राचीन भारत इतिहास कुहा जाऊ किंबा मध्ययुगीय भारत इतिहास कुहा जाऊ एवं आधुनिक भारत इतिहास कुहा जाऊ, प्रशासन होछि एक राष्ट्र रो विकास रो मेरुदंड। तंकरी कुहा जाए जे जो राष्ट्र प्रशासन जेते उन्नतिकरण जेते सुदृढ़ीकरण से राष्ट्र सेते विकसित। ए दृष्टिकोण में देखिबा जे दक्षिण भारत रे प्रशासन साधारणतः मोनार्किकल थिला बा राजकैंद्रिक थिला। कुहा जाए जे मोनार्क वाज द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ द किंगडम। एवं ये राज वंश बाय राष्ट्र गुडी करे साधारणतः राजा थिले मुख्य एवं सेंट्रल केंद्र प्रशासन कार्य करुथिला। प्रश्न आसे जे एठी राजा माने एक छत्रवादी नथिले। राजा माने शासन कार्य को सुपरिचालना करिबा पई अनेक मंत्री बा मंत्री परिषदंकर सहायता नथिले। फलस्वरूप आमे देखु जे दक्षिण भारत रे जो केंद्र प्रशासन थिला यह एकछत्रवाद न होई यह प्रजारंजककारी होइथिला बा प्रजा मंगलकारी होइथिला। जदि बा राजा थिले प्रशासन मुख्य किंतु से एकछत्रवादी नथिले, से डाउन टू अर्थ थिले। किभली भाबरे समाज रे राष्ट्र रे व्यक्ति विशेष सामाजिक अर्थनैतिक राजनैतिक सांस्कृतिक विकास लाभ करिबो से विषय रे साधारणतः राजा माने गुरुत्व देथिले। पुणी देखा जाए जे राजा हेउछंती
प्रशासन विभाग न्यायिक प्रशासन मुख्य कहुए द फाउंटेन ऑफ जस्टिस से न्यायर मूर्तिमंत प्रतीक पुणी कहुए जे राजा माने होउछन्ति उभय व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिकार उत्स प्रशासन को सुदृढ़ीकरण करने साम्राज्य सुशासन प्रतिष्ठा करने एवं प्रशासन को जनमंगल कार्य जनमंगलकारी करने एम्पायर गुड़िक साम्राज्य गुड़िक केते गुड़िए प्रदेश रे विभक्त करा जाउथिला लक्ष्य थिला एक सुस्थ सुदृढ़ शासन व्यवस्था प्रतिष्ठा करिबा पुन देखा जाए जे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द किंगडम्स इन द देखा हम देखो द एम्पायर्स वर डिवाइडेड इनटू मेनी प्रोविंसेस एवं प्रत्येक प्रदेश मुख्य थिले नायक तंगे हम कहिबा जे नायक होउछन्ति दक्षिण भारत प्रदेश मानकर मुख्य से साधारणतः जणे मिलिटरी चीफ जहाँ हम कहे सामरिक विभागर से मुख्य जहाँ हम कहि परबे सेनाध्यक्ष एवं नायकर मुख्य कर्तव्य हैला किभली भाबरे प्रदेश रे आईन कानून को प्रतिष्ठा करिबा एवं लोकमानक ठारो लैंड रेवेन्यू भू राजस्व को संग्रह करिबा एवं किभली भाबरे प्रदेश गुड़िक रे प्रत्येक व्यक्ति न्यायोचित भाबरे सम्मान पाइबे से दृष्टिकोण नायक माने साधारणतः चेष्टित रहुथिले एवं सेमानकर दृष्टि निक्षेप करुथिले एबे देखिबा डियर फ्रेंड्स विलेज एडमिनिस्ट्रेशन आमे प्रदेश पर आमे देखू जे प्रशासनिक विभाग सबुठारो निम्न प्रदेश रे ग्राम गुड़िक कार्य करुथिला कहीं ना प्रशासन जहाँ को आम संप्रति समय कहू जे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोले कहू स्वायत्त शासन व्यवस्था कहू आम जब इतिहास पृष्ठ देखू जे दक्षिण भारत रे मध्य एभली स्वायत्त शासन व्यवस्था प्रतिष्ठा लाभ करिथिला जेमिति हम देखिले जे केंद्र रे केंद्र सरकार राज्य रे राज्य सरकार जिला रे जिला सरकार एवं ब्लॉक मानकरे ब्लॉक हम देखु जे पंचायत समिति एवं ग्राम मानकरे ग्राम पंचायत एबे हम देखु ठीक से परि भाव रे दक्षिण भारत रे प्रशासन रो सर्वनिम्न स्तर रे रहुथिला ग्राम ग्राम को कहा जाए द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एवं ए ग्राम रे जो प्रशासन चालू थिला से प्रशासन गुडी के साधारणतः ग्राम पंचायत द्वारा चालू थिला एवं ग्राम पंचायत रो मुख्य थिले द हेडमैन जहाँ को साधारणतः आम संप्रति समय कही था ग्राम मुखिया बा ग्राम सभापति पुणी आम देखू जे केते गुड़िए ग्राम को नहीं आउ एक प्रशासनिक विभाग तैयारी करा जाउथिला से प्रशासनिक विभाग हैला स्थल एवं केते गुड़िए स्थल को नहीं आउ एक प्रशासनिक विभाग गठन होथिला ताहा को कहा जाउथिला नाडू एवं ब्रह्मदेव सिस्टम बा ब्रह्मदेव व्यवस्था मध्य दक्षिण भारत रे कोन चालू रहिथिला ए ब्रह्मदेव कहला में बुझू जे राजा माने साधारणतः मंदिर गुड़िकर विकास लाभ पाई मंदिर गुड़िकर रक्षणाबेक्षण पाई से माने किछि दान क्षेत्र रे ग्राम दान करिबा संगे संगे जमी दान करुथिले अर्थ दान करुथिले एवं सुना रूपा विभिन्न धातु मध्य दान करुथिले जहाँ को आम साधारणतः कही था ब्रह्मदेय व्यवस्था एबे देखिबा डियर फ्रेंड्स जेता आम दक्षिण भारत कथा देखुछे ए दक्षिण भारतर अर्थनीति आम जानती जे अर्थनीति हेउछे एक राष्ट्र विकास मेरुदंड अर्थनीति बिना शासन व्यवस्था असंभव एवं अर्थनीति बिना समाज राष्ट्र व्यक्तिर विकास असंभव से दृष्टिकोण आम देखू जे दक्षिण भारत रे राजा माने साधारणतः अर्थनीति को त्वरान्वित करने को जाई से माने कृषि को गुरुत्व देथिले कारण कृषिजात द्रव्य थिला राष्ट्र मुख्य इनकम जहाँ आम कहूँ मुख्य आय पंथा तेणुकर किभली भाव कृषि
ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ହେଇପାରିବ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ରାଜା ମାନେ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ମାନେ ସବୁ ଖୋଳୁଥିଲେ ଯାହାକୁ ସମୁଦ୍ରମ୍ସ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ କାକତୀୟ ମାନେ ବା କାକତୀୟ ରାଜବଂଶରେ କାକତୀୟ ପ୍ରଶାସନରେ ଆମେ ସର୍ବାଧିକ ଟ୍ୟାଙ୍କ ବା ସମୁଦ୍ରମ ଗଠନ ହୋଇଥିବାର ଖୋଳା ଯାଇଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ଏହା ବ୍ୟତିରେକେ ଡ୍ୟାମ୍ସ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଖୋଳା ଯାଉଥିଲା କାହିଁକି ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଜଳକୁ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିବ ଏବଂ ଇରିଗେସନ ବା ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଡିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କୃଷିର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜା ମାନେ ନରପତି ମାନେ ଶାସକ ମାନେ ଅନେକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଡ୍ୟାମ ଖୋଳେଇଥିଲେ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଚିରସବୁଜ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ରାଜବଂଶରେ ଅର୍ଥନୀତିର ଆଉ ଏକ ଦିଗକୁ ଆମେ ଐତିହାସିକ ଉତ୍ସରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ ତାହା ହେଉଛି ପର୍ଲ ଫିଶରିଜ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମାଛ ଚାଷ ବା ମୁକ୍ତା ଚାଷ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିଥାଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ମାର୍କୋ ପୋଲୋ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା କାହିଁକି ନା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ସାଧାରଣତଃ ବିଭିନ୍ନ ନଦ ନଦୀ ଏବଂ ମହାସାଗର ସାଗର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଆମେ କହିପାରୁଛେ ଆରବିଆନ୍ ସି ବା ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ବା ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସନ ଏହିପରି ଭାବରେ ଜଳପଥକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିଲେ ଫଳରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଅର୍ଥନୀତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଖୁବ ସୁଦୃଢ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀକୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଦେବଗିରି ବା ଦୌଲତାବାଦକୁ ସେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିଥିଲେ ତାର କାରଣ ଥିଲା ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପରିପୃଷ୍ଟ ଏବଂ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା সেই ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାହାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଯଦି ସେ କ୍ୟାପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଅର୍ଥନୀତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟ ବେଶୀ ଲାଭବାନ ହେବ ଏହା ଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଡିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଏକ ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଦ ରାଇଜ ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ୍ସ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଆମେ এই ଚାରିଗୋଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟତିରେକେ ଯେମିତି ଆମେ ଯାଦବଜ କାକତୀୟଜ ପାଣ୍ଡ୍ୟଜ ଏବଂ ହୟସାଳଜ এই ଚାରିଗୋଟି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟତିରେକେ ଆମେ ଦେଖୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଆଉ କେତେକ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ରାଷ୍ଟ୍ର এই ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ତିନି ଗୋଟି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଦ ମାବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଦ ବାହମନି କିଙ୍ଗଡମ ଏବଂ ତୃତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଦ ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାର ଡିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ এই ତିନି ଗୋଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାବାର କିଙ୍ଗଡମ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମାବାର ବାହମାନି ଏବଂ ବିଜୟନଗର ଏବଂ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମାନେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ମାବାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି dear friends ମାବାର was conquered in 1323 1323 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମାବାରକୁ କଙ୍କଡ କରାଗଲା ଜୟ କରାଗଲା ଏବଂ ଏହା ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଆସାନ এই ମାବାରର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ ଏଥିର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଯେ ଐତିହାସିକ ମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଆସାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ମାବାରର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ମାବାର ପ୍ରଥମେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟ ପ୍ରତି ନିଜର ବିଶ୍ୱସ୍ତ
भाव प्रकाश करथिला बा दिल्ली सुल्तानेट प्रति माबार किंगडम रो शासक माने विश्वस्त थिले। किंतु परवर्ती समय रे जेते बेले देखा गला जे माबार दिल्ली सुल्तान मानक सहित डिस्टेंस बढ़िला, दूरत्व बढ़िला एवं सेमानक सहित बा दिल्ली रो सुल्तान्स माने माबार प्रति सेभली दृष्टि रखी पारिले नाही एवं पुअर कम्युनिकेशन आम कहबा दुर्बल चिंताधारा रो परिप्रकाश हेतु आम देखिले जलालुद्दीन आसान से कौन कले ना निजकु जने स्वाधीन चेता शासक भावरे से परिणत कले। एवं बड़ कथा जे माबार किंगडम बेसी दिन पर्यंत तिष्टि रही नथिला। जहाँ इतिहास पृष्ठ आम जानिबा को पाऊ ए माबार किंगडम ता दक्षिण भारत रे मात्र 40 वर्ष शासन करने को सक्षम होइथिला एवं परवर्ती समय जेता हम देखिले जे यार प्रशासन एते सुदृढ़ नथिला, दुर्बल प्रशासन थिला। एहार सुजोग नहीं विजयनगर एम्पायर 1378 ख्रीष्टाब्द रे ए माबार किंगडम को जयलाभ कला एवं विजयनगर एम्पायर विजयनगर साम्राज्य माबार पर्यंत लंबी थिला। ए थिला एक संक्षिप्त इतिहास माबार किंगडम विषय रे। हमें देखिबा आउ एक किंगडम दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट हम देखिबा डियर फ्रेंड्स ए दक्षिण भारत रे आउ एक स्वाधीन चेता राष्ट्र जहाँ थिला बाहमानी। हम देखु छे डियर फ्रेंड्स दिल्ली सुल्तानेट समय रे पर्टिकुलरली मोहम्मद बिन तुगलक जेते बेले दिल्ली रो सुल्तान थिले सही समय रे 1347 ख्रीष्टाब्द रे बाहमानी किंगडम ता दक्षिण भारत रे प्रतिष्ठा लाभ करिथिला एवं जेते बेला में देखु जे सुल्तानेट समय रे आमे दक्षिण भारत रे केते गुडी आंचलिक क्षमता मुंड टेकिथिला जहां हमें इतिहास पृष्ठ जानिबा को पाऊ, आमे अभिलेखगारी उपादान जानिबा को पाऊ बा आमे पर्शियन रेकॉर्ड्स मध्ये जानिबा को पाइथाउ। डियर फ्रेंड्स आमे जेतले दिल्ली सुल्तानेट कथा को आलोचना करूछंती बा मध्ययुगीय भारत इतिहास को आमे आलोचना करूछंती आमे देखिले जे दिल्ली सुल्तानेट पीरियड रे जहा कि 1206 रु 1526 इब्राहिम लोदी द लास्ट फ्लिकर ऑफ द सुल्तानेट डायनास्टी ए सब भितरे आमे देखु जे केते गुडी आंचलिक क्षमता मुंड टेकिथिला। ए राज्य मानक मध्य आमे देखु प्रथमे द बाहमानी किंगडम आउ देखु द विजयनगर एम्पायर एवं तृतीय आमे देखु द ओडिशा स्टेट। एबे हम देखिबा जे बाहमानी किंगडम रो राजनैतिक इतिहास साधारणतः जेतले आमे कोनोसी एक राजवंश रो आमे राजनैतिक इतिहास को आलोचना करू आमे देखो जे राजा मानकर साम्राज्य प्रति राष्ट्र प्रति व्यक्ति विशेष प्रति तांकर कर्तव्य जेतले आमे बाहमानी किंगडम कथा आलोचना करू डियर फ्रेंड्स एही साम्राज्य टे एही राष्ट्र टे अब्दुल मुजाफर अबा अलबादी बाहमन शाह ताहाक प्रतिष्ठा लाभ करिथिले। अब्दुल मुजाफर अब अलबादी बाहमन शाह ए बाहमानी किंगडम रा प्रतिष्ठाता एवं संक्षेप रे आमे हासन गांगू भाबरे तांको जानि थाउ। एबे देखिबो जे ए बाहमानी किंगडम रो राजधानी थिला गुलबर्ग बा आमे कहबा आसानबाद बा गुलबर्ग एवं ऐतिहासिक उत्सर आमे जानिबा को पाऊ जे ए बाहमानी किंगडम रे आमे 18 जन शासकों को आमे देखिबा को पाई थाउ। साधारणतः बाहमानी किंगडम रे आमे 18 जन शासकों को देखिबा को पाई थाउ एवं किछि गुरुत्वपूर्ण शासक हेले आमे कहि परिबा जे मोहम्मद शाह प्रथम जे कि 1358 रु 1377 पर्यंत से शासन करथिले एवं सब बड़ा कथा हैला
जे ही वाज ए मैन ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। मोहम्मद शाह जने शासक थिले बाहमनी किंगडम रो एवं से शांति प्रिय थिले। समाज रे किभଳି भाबे शांति प्रतिष्ठा हबो से कथा को से गुरुत्व देउथिले एवं he developed the friendly relationship to with the neighbors। से सदा सर्वदा पड़ोसी मानक सहित पड़ोसी राष्ट्र मानक सहित मोहम्मद शाह शांति बा सुसंपर्क प्रतिष्ठा करथिले जहा हम इतिहास पृष्ठ जानिबा को पाऊ। एवं सब बड़ कथा हैला जे तांको समय रे बाहमानी राज्य रे अनेक गुड़िए कलाकृति ऐतिह्य प्रतिष्ठा लाभ करथिला जहा को हमें कहि परबा ही बिल्ट मेनी मॉस्क्स मद्रासास एंड हॉस्पिटल्स। आम देखिले जे मोहम्मद शाह एपरि भाव रे जणे बाहमानी शासक हिसाब रे परिचित थिले एवं तांको परे आमे देखु मोहम्मद शाह द्वितीय आमे देखु जे कि 1378 रु 1397 पर्यंत शासन करुथिले एवं आमे देखु डिफरेंस सेही परि फिरोज शाह बाहमानी जे कि 1397 रु 1422 पर्यंत शासन करिसंती। पुणे आमे देखिले जे अहमद शाह जे कि 1422 रु 1435 पर्यंत शासन करिसंती एवं मोहम्मद शाह जे कि मोहम्मद शाह तृतीय 1463 रु 1482 पर्यंत से शासन करिसंती। एवं आमे देखु जे तांको समय रे he became the sultan of the Bahamani kingdom at the age of 9 and occupied the throne। मात्र 9 वर्ष बयस रे से सिंहासन आरोहण करथिले। जदि बा सेही समय रे सिंहासन बा राजशासन प्रतिष्ठा करिबा पाई तांको पाखरे सेतिकी ज्ञान नथिला किंतु मोहम्मद शाह वाज इन्फेंट हम जानिले से जने इन्फेंट थिले शिशु थिले तन करी से गन became the regent मोहम्मद गन जहा का हम कहू छे आउ जने शासक बाहमानी किंगडम रो से तांकर सुरक्षा देबा संगे संगे मोहम्मद शाह के बड़ी भाव प्रशासन करिवे तांको से निर्देश देउथिले एवं बाहमानी किंगडम became very powerful। परास्त करथिले फलस्वरूप निजर राजकीय निजर राजनैतिक क्षमता को प्रतिष्ठा करिबारे आमे देखु जे मोहम्मद शाह सफल लाभ करथिले एवं से जो राज्य गुडी को जय लाभ करथिले जो शासक मानु से जय लाभ करथिले से माने हेले कोंकण एवं ओडिशा देन संघेश्वर एवं विजयनगर एही राज्य राजा मानु को मोहम्मद शाह परास्त करथिले। सो डिफरेंस आमे लास्ट देखुचे जे मोहम्मद गौन जे कि जने उच्च कोटिर विद्वान थिले स्कॉलर थिले एवं से एक दृढ़ प्रशासन को प्रतिष्ठा करिबारे मध्य सक्षम होइथिले एवं सब बड़ कथा हैला जे से निजर शासन समय मोहम्मद गौन निजर शासन समय रे से प्रशासन एवं पब्लिक वर्क शिक्षा एवं लैंड रेवेन्यू भूराजस्व एवं सामरिक बाहिनी रे श्रृंखला एवं करप्शन को दूर करिबारे से मुख्य भूमिका ग्रहण करथिले। तंगरे ऐतिहासिक माने कहंती जे मोहम्मद गन हेउछंती बाहमानी किंगडम रो जने सबुठारु गुरुत्वपूर्ण क्षमताशाली शासक थिले जहां समय बाहमानी किंगडम उत्कर्षतार चरम सीमा रे पहुंचीथिला। आमे देखिबा जे जेते बेले बाहमानी किंगडम रे तो साधारणतः राजा राजा मानक मध्य रे आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद शाह तृतीय मृत्यु परे 1482 परे आमे देखिले जे सेमानकर उत्तराधिकारी मानक मध्य रे भल संपर्क नथिला एवं से माने दुर्बल चेता थिले फलरे दे कुडंट मेंटेन द स्ट्रांग होल्ड ऑन द बाहमानी किंगडम ऊपरे
ପୂର୍ବ ରାଜା ମାନେ ଯେଭଳି ତାଙ୍କର ଶାସନକୁ ସୁଦୃଢ କରିପାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ସୁଦୃଢୀକରଣ ପ୍ରଶାସନ ଆମେ ଆଉ ବାହାମନି କିଙ୍ଗଡମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନଥାଉ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ବାହାମନି କିଙ୍ଗଡମ କଣ ହେଲା ନା 5 ଛୋଟ ଛୋଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା। এই 5 ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ହେଲା ବିଜାପୁର, ଅହମ୍ମଦନଗର, ବେରା, ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ଓ ବିଦାର। ଏହିପରି 5ଟି କିଙ୍ଗଡମ ବାହାମନି ରାଜ୍ୟ 5ଟି କିଙ୍ଗଡମ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଜଣାଗଲା ଯେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବାହାମନି କିଙ୍ଗଡମ ତାର ଐକ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ବ୍ୟତିରେକେ ବାହାମନି କିଙ୍ଗଡମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଡିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେ ବାହାମନି କିଙ୍ଗଡମ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଐତିହାସିକ ଉତ୍ସରୁ ଜାଣିପାରୁ ଡିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେ ସବୁରି ମୂଳରେ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶ ଏକ ସୁଶାସନ ବା ସୁପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯାହା ଆମେ ଐତିହାସିକ ଉତ୍ସରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ ଯେ ବାହାମନି କିଙ୍ଗଡମରେ ପ୍ରଶାସନ ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ। ଆମେ ଯାହାକୁ କହିଥାଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଶାସନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଶାସନ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, এই କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଶାସନରେ କିଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି, ଶାସକ ନରପତି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ବା ଆପେକ୍ସ ଅଫ ଦ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯଦି ବା ରାଜା ମାନେ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ନ୍ୟାୟିକ କ୍ଷମତା, ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା କ୍ଷମତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା କ୍ଷମତା। ଏହା ବ୍ୟତିରେକେ ସାମରିକ କ୍ଷମତା, ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷମତା ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତାକୁ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ କରି ବାହାମନି କିଙ୍ଗଡମରେ ରାଜା ମାନେ ନିଜର ସ୍ଥାନକୁ ସୁଦୃଢ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ କ୍ଷମତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ରାଜା ମାନେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ନଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବାହାମନି କିଙ୍ଗଡମର ରାଜା ମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁଣବତ୍ତା। ରାଜା ମାନେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ନଥିଲେ, ତାହା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ ଡିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। କାହିଁକି ଏକଛତ୍ରବାଦ ନଥିଲେ ନା ପ୍ରଶାସନର ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜା ଏକା କରୁନଥିଲେ ବା ରାଜା ଏକା ନେଉନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ରାଜା କଣ କରୁଥିଲେ, ଏକ ସୁଶାସନ ପାଇଁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ସହାୟତା ନେବା ପାଇଁ ସେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁନଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଡିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ ଯେ ରାଜା ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ସହାୟତା ନେଉଥିଲେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ କହିଥାଉ। ଏବଂ এই ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ୱାକିଲ, ୱାଜିର, ବକ୍ସି ଏବଂ କ୍ୱାଜି। ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଏମାନେ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜା ବାହାମନି କିଙ୍ଗଡମରେ ରାଜା ମାନେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲେ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶାସନର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଅର୍ଥନୀତିର ବିକାଶ ପାଇଁ, କୃଷିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ ତାହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବାହାମନି କିଙ୍ଗଡମର ରାଜା ମାନେ ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦକ୍ଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ସହାୟତା ନେଉଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ରାଜା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ସହାୟତା ନେଉଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଦବିର। ଦବିର ଥିଲେ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ସଚିବ ଥିଲେ। କାହିଁକି ଆଜି ଆମେ ବି ବା ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବିଭାଗ କହୁଛେ ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ, ସଚିବ ଏବଂ ଉପସଚିବ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଠିକ ସେହିପରି ବାହାମନି କିଙ୍ଗଡମରେ ଦବିର ଥିଲେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବା ସଚିବ। ଦବିରଙ୍କ ପରେ ଥିଲେ ମୁଫ୍ତି। ମୁଫ୍ତିକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କହିଥାଉ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟର ଅଫ ଲ। କିଭଳି ଭାବରେ ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ
ताहार दायित्व मुक्ति के ऊपर न्यस्त थिला। ठीक सेही परी आमे जेतल देखो कटवाल थिले द सेंसर ऑफ द पब्लिक। से जन समाज व्यतीत बा साधारण जनता मान सहित सुसंपर्क रक्षा करुथिले। आउ जणे व्यक्ति हेले मुनिहो सांस। ए मुनिहो सांस हेउछन्ते आउ जणे व्यक्ति विशेष आउ जणे कर्मचारी जे कि राजा को विभिन्न कार्य सहायक करुथिले एवं तांकर काम थिला गुप्तचर। ए मुनि सांस माने साधारणतः बाहामनी किंगडम रे राजा मानक पई गुप्तचर भाबरे नियोजित होथिले एवं समकर काम थिला जस्ट लाइक टू पुट द विजिल आईज। सेमानकर काम थिला जे प्रशासन उपरे दृष्टि निक्षेप करिबा, प्रशासन को निरीक्षण करिबा। कर्मचारी माने सठिक भाबरे कार्य करूछन्ति ना कार्य करूनाहंती एहा को तदारक करिबा पई स्पाई माने बा गुप्तचर भाबरे मुनि सांस माने कार्य करूथिले। एबे देखिबा डियर फ्रेंड्स, ए केंद्र प्रशासन परे आमे देखु जे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बाहामनी किंगडम रे आमे देखु जे प्रादेशिक प्रशासन। आमे जेतेबेले बाहामनी किंगडम कथा देखिबा, ए होल बाहामनी किंगडम साधारणतः 4 गोटी मुख्य प्रशासन प्रदेश विभक्त होइथिला। डियर फ्रेंड्स, आमे देखु जे प्रशासनर सुदृढ़ीकरण पाई जेतेबेले राजा समस्त साम्राज्य को शासन करिबारे सफल होते नहीं बा प्रशासन को आहुरी सुदृढ़ करिबा पाई राजा माने कोन करुथिले ना साम्राज्य को विभिन्न प्रदेश रे विभक्त करुथिले। से दृष्टि में देखु जे बाहामनी किंगडम मध्य केते गुडी प्रदेश रे विभक्त होइथिला। ए प्रदेश गुडी कहला दौलताबाद, बेरार, बिदार एवं गुलबर्ग। एपरी मुख्यतः 5टी चारोटी प्रदेश रे विभक्त होइथिला एवं एही प्रदेश गुडीकर मुख्य थिले गवर्नर थिले द हेड ऑफ द प्रोविंस। जेहेतु गुलबर्ग थिला ब्राह्मणकाल किंगडम रो बाहामनी किंगडम रो एक गुरुत्वपूर्ण प्रोविंस, गुरुत्वपूर्ण प्रदेश। एहार मुख्य थिले मीर नायब। सेथे लगी आमे कहू जे तांकर पोजीशन अन्य प्रोविंस मानक ठारू बा अन्य प्रदेश र गवर्नर मानक ठारू मीर नायब एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करुथिले। एबे आमे देखिबा जे सामरिक प्रशासन डियर फ्रेंड्स, जेतेबेले आमे सामरिक प्रशासन कथा देखुछे, द हेड ऑफ द आर्मी ऑफ द बाहामनी किंगडम रो आर्मी रो मुख्य थिले अमीर उल उमर। सो डियर फ्रेंड्स, एठी हमें मने रखिबा दरकार जे एक राष्ट्र रो रक्षा कवच हेउची सामरिक विभाग। से दृष्टिकोण में देखु जे बाहामनी किंगडम आर्मी द्वारा निजर सामरिक प्रशासन द्वारा सुदृढ़ होइथिला एवं निजको निरापद माने करुथिले। काहेकि ना दृढ़ एवं शक्तिशाली सामरिक प्रशासन द्वारा बाहामनी किंगडम बाह्य शत्रु को सहज मुकाबला करि पारुथिले। एबे हम देखिबा जे जेतेबेले बाहामनी किंगडम नामे आर्मी ऑर्गेनाइजेशन कथा आलोचना करूछु डियर फ्रेंड्स, आमे देखिबा साधारणतः आर्मी को 3 भाग विभक्त करा जाउथिला। गोटे थिला सोल्जर्स जहा का में साधारणतः इन्फेंट्री बोली कहथाउ। तापर आमे देखो कैवलरी जहा का में कहू अश्वारोही एवं इन्फेंट्री जहा का में कहू हस्तिरोही बा हस्तारोही। एठी हम देखिबा जे बाहामनी किंगडम राजा माने बहुत गुड़िए बॉडीगार्ड को नियोजित करथिले निजर सुरक्षा पाई। राजा माने आज भी हमें देखु छथि केवल खाली आमे जहा इतिहास रे पढू जे हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास रे पुनरावृत्ति घटे। आज भी हमें देखु जे संप्रति समय राजनेता माने मंत्री परिषद माने जेते बेले जानती से माने निजर बॉडीगार्ड को नेक मथे जानती
जहाँ आम बाहामान किंगडम देखा पाई एवं से माने बहुत गुड़िए बॉडीगार्ड अंगरक्षी मानक नियोजित देउथिले एही अंगरक्षी मानक आम कही थाउ ना खासा खेल बा कहीं के कहते खसा खेल सो बाहामान किंगडम रो आर्मी ऑर्गेनाइजेशन आलोचना कला बेले आमे आउ एक दिग को देखु से दिगटी हेउची जे आर्मी प्रशासन रे बाहामान किंगडम रो शासक माने बा अमीर उल उमर से गन पाउडर को व्यवहार करा जाउथिला द आर्मी ऑफ बाहामान किंगडम यूज द गन पाउडर एहा थिला बाहामान किंगडम आर्मी प्रशासन रो एक गुरुत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय घटना आ सबुठ बड़ कथा हला जे आर्मी बा सैन्य माने भारी सुदृढ़ थिले काहेकि ना सेमानक पाखरे अपर्याप्त युद्धास्त्र रहिथिला एही युद्धास्त्र गुडी के मध्य थिला जाभलिन आउ थिला खंडा आउ थिला धनुतीर आउ थिला बम्बार्डिंग मशीन्स एपरि विभिन्न प्रकार युद्धास्त्र द्वारा बाहामान किंगडम राजा माने एक शक्तिशाली आर्मी सामरिक प्रशासन बा सामरिक संगठन प्रतिष्ठा करि परिथिले ए दृष्टिकोण आमे जानिले जे बाहामान किंगडम जदिबा एक स्वाधीन चेता राष्ट्र थिला तथापि दक्षिण भारत रे एक गुरुत्वपूर्ण राष्ट्र भावरे परिचित थिला डियर फ्रेंड्स आमे आउ एक राजवंश बा राष्ट्र कथा आलोचना करिबा ताहा हेउची द विजयनगर एम्पायर सो डियर फ्रेंड्स जते बेला आमे विजयनगर एम्पायर कथा को आमे आलोचना करूछंती आमे देखिबा जे विजयनगर एम्पायर रे साधारणतः 3 गोटी राजवंश राजूति करुथिबार आमे देखिबा को पाइथा ए राजवंश गुडी कहला संगम डायनास्टी सालुभ डायनास्टी एवं तुलुभ डायनास्टी एपरि अनेक डायनास्टी आमे देखिबा को पाउ एवं ए डायनास्टी गुडी को विषय रे बा आमे विजयनगर एम्पायर विषय रे आमे विभिन्न ऐतिहासिक उत्सर जानिबा को पाइथा कहीं कि ना आमे जानि छंती ऐतिहासिक माने कौन से एक घटना कौन से एक समय को जेते बेले पुनरुद्धार करंती सेते बेले से माने ऐतिहासिक उत्सर सहायता करंती ऐतिहासिक उत्सव बिना ऐतिहासिक उत्सव बिना ऐतिहासिक गवेषक माने गोटे इंच मध्य जाई पारबे नाही से दृष्टिकोण आमे अनेक शिलालेख किछि आंचलिक लेखा रु आमे जानिबा को पाइथाउ जे विजयनगर एम्पायर थिला एक सुदृढ़ एम्पायर सुदृढ़ साम्राज्य एही साम्राज्य भितरे विजयनगर एम्पायर रे आमे देखु तुलुभ डायनास्टी थिला सबुठ क्षमताशाली काहे कि नै तुलुभ डायनास्टी बा तलुभ डायनास्टी रो श्रेष्ठ राजा थिले कृष्णदेवराय जे कि 1509 ख्रीष्टाब्द रु 1530 ख्रीष्टाब्द पर्यंत से शासन करथिले एवं आमे जते बेले ऐतिहासिक उत्सव को रोमंथन करू ऐतिहासिक उत्सव को पुनरुद्धार करू आमे देखिबा को पाऊ जे विजय कृष्णदेवराय केवल जणे राज्य विजयी नथिले से मध्य अनेक राज्य को जय करिबा संगे संगे से जने सुप्रशासक थिले एवं साहित्यिक थिले मध्य तंग्रा में देखू जे निज साम्राज्य को सुदृढ़ करिबा पई विजय कृष्णदेव अनेक अंचल को मध्य जयलाभ करछथि डियर फ्रेंड्स आमे देखिबा जे विजयनगर एम्पायर रो श्रेष्ठ नरपति जाका में कहू जे कृष्णदेवराय से केवल जने राज्य विजेता नथिले से जने कंकरर नथिले से थिले जने सुप्रशासक एवं सबुठ बड़ कथा हला जे साम्राज्य रो विभिन्न अंशरे तांकर दृष्टि रहुथिला एवं साम्राज्य रे केउठारे केउ घटना घटुची केउठार अप्रीतिकर परिस्थिति घटुची केउठार आर्थिक अवस्था शोचनीय हेउची बा संपूर्ण साम्राज्य को से निजर चक्षुरे रखिथिले सेथले कहा जाय ऐतिहासिक माने कहंती जे कृष्णदेवरायस विजिलेंस वाज फलन इन द होल एम्पायर आउ देखिबा जे कृष्णदेवराय
थिले अति दयालु, से क्रूर नथिले, से निष्ठुर नथिले, से सब्जेक्ट मान प्रति निजर व्यक्ति निजर प्रजा मान प्रति तत्संगे संगे वैदेशिक व्यक्ति विशेष जहाँ को हम कहते फरेनर्स से प्रति मध्य से दयाशील थिले किभली ना आम जानू जने प्रशासन हिसाब से चाहूले जे जने राजा जदि प्रजा मान निकटवर्ती होई न पारे से प्रकृत राजा नुहे बोली कृष्णदेवराय निजको मनुले निजको गणुले एवं कृष्णदेवराय साम्राज्य रे प्रशासन आम देखू जे रेवेन्यू व्यवस्था भू राजस्व व्यवस्था खूब उच्चकोटीर थिला दक्ष थिला एवं सब बड़ कथा है कृषि एवं व्यवसाय वाणिज्य विजयनगर एम्पायर थिला मेरुदंड आम देखो विजयनगर एम्पायर कृष्णदेवराय तांकर पड़ोसी राष्ट्र मान सहित व्यवसाय वाणिज्य रे सुदृढ़ता लाभ करथिले एवं कृषि विकास पई से अनेक डैम मध्य खोलैथिले अनेक जलाशय खोलैथिले एवं सबुठ बड़ कथा है से चाहूले जे लोक माने किभली भाव में शांति रे कालातिपात करिवे जहाँ कि आम ऐतिहासिक उत्स जानवा पाऊ इनस्क्रिप्शन आम जानवा पाऊ बेगा बागा पेलिसी कपर प्लेट इनस्क्रिप्शन आम बागा पेलिसी कपर प्लेट इनस्क्रिप्शन बागा पेलिसी शिलालेख तो ताम्र शिलालेख आम जानवा पाऊ ताम्र ताम्र पट्टा कहि परिबा आमे बा ताम्र पात कहि परिबा बागा पेलिसी कपर प्लेट इनस्क्रिप्शन अभिलेख आम ताको कहूछे आउ पुनी बित्रा गुंटा ग्रांट ऑफ संगम फा सेकंड एथुर मध्ये आमे जानिबा को पाइथौ सो डियर फ्रेंड्स आमे अनेक ऐतिहासिक उत्स जानिबा को पाऊ एवं मनुचरित जहाँ कि हम कहूचे आलास निपेदान एथुर मध्ये आमे जानिबा को पाऊ जे विजयनगर एम्पायर कृष्णदेवराय थिले जने प्रतिष्ठाशाली पराक्रमी शासक जहाँ के समय रे प्रजा माने शांति रे कालातिपात करुथिले एबे आमे आउ एक दिग को आलोचना करिबा ताहा हेउची जे कृष्णदेवरायकर धार्मिक नीति सो डियर फ्रेंड्स आमे निश्चित भाव में कहि परिबा जे जेतला आमे कृष्णदेवरायकर धार्मिक नीति कथा को आमे आलोचना करूछंती वी मस्ट कीप इन माइंड आमे देखिबा जे कृष्णदेवराय थिले जने हिंदू कृष्णदेवराय थिले जने हिंदू एवं तांको समय रे दक्षिण भारत रे वैष्णव धर्मर द्रुत प्रचार लाभ करिथिले डियर फ्रेंड्स जेतला आमे वैष्णविज्म कथा आलोचना करू जे वैष्णविज्म साधारणतः कल्ट इमेज आमे कहिबा द कल्ट इमेज ऑफ वैष्णविज्म वाज विष्णु विष्णु हेउछन्ते वैष्णव धर्मर कर्ता एवं विष्णु को आधार कर वैष्णव धर्म खाली दक्षिण भारत रे नहीं पूर्व भारत एवं उत्तर भारत रे मध्य यदि हम उत्तर भारत कथा देखुचे मथुरा वृंदावन काशी वाराणसी ए अंचल गुडी करे आमे सेही परि आमे जदी पूर्व भारत कथा देखिबा आमे कहि परिबा वेस्ट ओडिशा आसाम ए सब अंचल रे वैष्णव धर्मर द्रुत विकास लाभ करथिला किंतु प्रथम वैष्णव धर्म दक्षिण भारत रे आरंभ होइथिला केउ मानक द्वारा ना आल्बार्स मानक द्वारा से माने प्रबंध एवं भजन द्वारा वैष्णव धर्म प्रचार प्रसार करथिले ताले हम जानिले कृष्णदेवराय जने पृष्ठपोषकता एवं देखिबा जे वैष्णव विजयनगर एम्पायर समय रे कृष्णदेवराय मंदिर मानकु एवं ब्राह्मण मानकु से अनेक उपहार दान करुथिले जहाँ को हमें कहूचे कि ब्रह्मदेव व्यवस्था लक्ष्य थिला ब्राह्मण मानक दान सूत्र जमी देवा एवं मंदिर गुड़िकर विकास मंदिर गुड़िकर रक्षणाबेक्षण पाई कृष्णदेवराय अनेक नीति को आपणे थिले से नीति गुड़िक भीतर आम देखिले जे ब्रह्मदेव व्यवस्था होची एक गुरुत्वपूर्ण व्यवस्था आ सबुठ बड़ कथा है जे कृष्णदेवराय से जने फानाटिक नथिले बा कोनोसी एक निर्दिष्ट धर्म को
प्रचार प्रसार अन्य धर्म को बा अन्य धर्म प्रति दृष्टि निक्षेप न करबा नीति से विश्वास करुनथिले से थिले जने सेकुलर हम कहि परिबा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष व्यक्तित्व कहला तृप्ति हेबा नाही जदि बा से थिले जने हिंदू बा वैष्णव धर्मर पृष्ठपोषकता लाभ करथिले तथापि मध्यम डियर फ्रेंड्स आमे देखु जे कृष्ण देवराय अन्य धर्म प्रति मध्य समान व्यवहार प्रदर्शन करथिले किभली भाबरे हिंदू बा वैष्णव धर्म व्यतिरके शाक्त धर्म आमे कहि परिबा गणपत्य धर्म आमे कहि परिबा शैव धर्म एभली अन्य धर्मर प्रचार प्रसार पाई कृष्ण देवराय अनेक गुरुत्वपूर्ण भूमिका बहन करथिले आमे देखिबा आउ एक दिग ताहा होची द ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग सो डियर फ्रेंड्स जेते बेले आमे कृष्ण देवरायंकर साहित्यिक कृति कथा को आमे आलोचना करू आमे देखिबा को पाऊ जे कृष्ण देवराय से जने राजा थिले जने प्रशासक थिले एवं से एकाधारा रे थिले जने विद्वान कहीं कि आमे जेमिति गुप्त शासन समय रे आमे देखिबा को पाऊ जे विक्रमादित्य सेकेंड चंद्रगुप्त सेकेंड रो अन्य नाम आमे कहू विक्रमादित्य एवं तांको समय रे राज दरबार रे से 9 जन पंडित को स्थानित देथिले नियुक्ति देथिले ए 9 जन पंडित द्वारा गुप्त साहित्य रो सुदृढ़ीकरण हेबा संगे संगे गुप्त शासन व्यवस्था एक सुवर्ण युग भाबरे परिचित होई पारिथिला केवल गुप्त युगर साहित्यिक अवदान पाए ठीक सही पर डियर फ्रेंड्स आमे देखिबा जे कृष्णदेव राय से मध्यम थिले जने ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग से साहित्यिक बा साहित्यर विकास एवं प्रसार पाई से अनेक पदक्षेप नेबा संगे संगे निज दरबार राज दरबार रे से 8 जन विद्वान 8 जन कवि को से नियुक्ति देथिले एवं सबुठ बड़ कथा है डियर फ्रेंड्स आमे जेते बेले ए साहित्यिक कृति कथा आलोचना करूचे ए 8 जन कवि हेले जहां को आमे कहूचे अष्ट दिग्गज एवं ये अष्ट दिग्गज माने निजर साहित्यिक कृति द्वारा विजयनगर एम्पायर को एक सुदृढ़ एम्पायर साम्राज्य परिणत करिबारे सहायक होइथिले एवं सबुठ बड़ कथा हैला जे कृष्णदेव राय नेतृत्व रे तांकर प्रचेष्टा रे शिक्षा र प्रचार प्रसार पाई अनेक पदक्षेप ग्रहण करा जायथिला जहां को हमें कहि परिबा जे विद्यालय बा मद्रास एपरी अनेक साहित्यिक अनुष्ठान मान गढ़ी उठिथिला हम देखु छ डियर फ्रेंड्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कृष्णदेव राय मास्टरपीस होची अमुक्त माल्यदा ए अमुक्त माल्यदा हम जानिबा पाऊ जे कृष्णदेव राय कृतित्व तांकर सामरिक कृतित्व तांकर राज्यजय तांकर अर्थ तांक समय रे विजयनगर एम्पायर अर्थनैतिक विकास सांस्कृतिक विकास एपरिकी आमे देखु जे विजयनगर एम्पायर एक स्वयं सया बा आम कहूचे कहि परिबा स्वयं संपूर्ण साम्राज्य भाव दक्षिण भारत रे परिचित होइथिला तंकरी ऐतिहासिक माने कहंती गवेषक माने मतपोषण करंती जे दक्षिण भारत रे विजयनगर एम्पायर थिला सबुठारो विकासशील राष्ट्र पुणी आमे देखिबा डियर फ्रेंड्स जे विजयनगर एम्पायर पोरे आमे जेतल देखुची कृष्णदेव रायंकर पोरे तांकर जे माने आसिले उत्तराधिकारी आमे देखिले डियर फ्रेंड्स विजयनगर पोरे पर्टिकुलरली विजयनगर एम्पायर ने कृष्णदेव रायंकर पोरे तांकर उत्तराधिकारी ए विजयनगर एम्पायर को आउ से सुरक्षित करी रखि पारि नथिले तार कारण थिला जे वीक सक्सेसर्स हमर इतिहास पृष्ठ आलोचना करा जाए जे राजांक उत्तराधिकारी माने जदि सुदक्ष न हेबे जदि दूरदृष्टि संपन्न न हेबे ताहले एक साम्राज्य र पतन हेबा अभिसंभावी जहाकि आमे देखु जे विजयनगर एम्पायर कृष्णदेव रायंक पोरे पतनर सम्मुखीन होइथिला फलस्वरूप आमे देखु जे रंग सेकेंड एवं
वेंकट सेकेंड एपरी भाबरे आमे देखु जे विजयनगर एम्पायर उत्तराधिकारी जा फल कि एही साम्राज्य तिष्टि पारि नथिला एवं विजयनगर एम्पायर रो पतन घटिथिला। पर जदि आमे देखिबा विजयनगर एम्पायर रो आउ एक दिग डियर फ्रेंड्स ताहा होची प्रशासन कहीं ना दक्षिण भारत रे बाहामान किंगडम कथा कह जाऊ बा आमे कहि परिबा दक्षिण भारत डेकान रे जो चारि गोटी राजवंश प्रतिष्ठा लाभ करिथिला ताहा जादवज काकतीयज हयसाळज एवं पांड्यज एही राजा माने मध्य एक सुशासन प्रतिष्ठा करिबा पई सर्वदा चेष्टित थिले। ठीक सेही परि भाबरे कृष्णदेव नेतृत्व विजयनगर रे एक दृढ़ प्रशासन प्रतिष्ठा होई पारिथिला जे प्रशासन को आमे साधारणतः कहि थाउ केंद्र प्रशासन एवं जेतरा आमे केंद्र प्रशासन कथा कहू ए केंद्र प्रशासन को आमे साधारणतः दुई भाग रे व्यक्त करि थाउ। प्रथम टी होची राजा एवं द्वितीय होची मंत्री परिषद। सो डियर फ्रेंड्स आमे ऐतिहासिक उपादान जानिबा को पाऊ जे कृष्णदेवराय विजयनगर एम्पायर माध्यम रे एक दृढ़ प्रशासन दक्षिण भारत रे प्रतिष्ठा करथिले। फलस्वरूप विजयनगर एम्पायर एवं कृष्णदेवराय आज भी इतिहास रे बा मानस पटरे से माने प्रतिफलित होई थांती। धन्यवाद।